Okay, so basically there are two different scenarios for standing waves. The first one is like closed loop because we started the idea with fixed points, right? So when you have fixed point, so definitely we are talking about both fixed end, right? There is nothing open or there is not one side open. So both ends are fixed. So first of all, we are completely solving the numbers for both and fixed. Okay, so first of all, if we consider a stationary wave in the sense when both ends are fixed. So now we are going to discuss all the examples with fixed points. And there are two different scenarios also. Two different scenarios in the sense we know that we have formula V is equals to F lambda. So either we can change the length, either we can change the frequency because we are finding wavelength. So when we are finding wavelength, so definitely we need to know about frequency, and sometimes we can also change the length because now we have fixed points. So definitely length also makes a difference in your calculation. So it is very important to know about length and also to know about frequency. So first of all, if we consider the category of changing length, like what happened and how to find out the wavelength when we are going to change the length. Okay. So first of all, if we consider 2 points, again, two fixed points, and we are talking about single loop. Basic example, and second one is a reflection. So basically, we are getting two nodes and one antinode. Now let's suppose, for example, because we are talking about changing length, so initially let's suppose we started from 10 centimeter, means the length of the thread is 10 centimeter. So definitely in this diagram, you are only getting half wave. So wavelength is, or you can write 0.5 lambda because we have half wave. So when we have half wave, to get like a complete wave, what you have to do, this is the question. We have to double the length, right? Because in this length, we are getting half wave. To get a full wave, we have to increase the length, right? Now, if you increase the length, so you will get waves like this. Now we increase the length and the distance between the points also increases. And this time you will get a complete wave like this. ठीक है, क्योंकि जब आपने 10 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया, सो इन 10 सेंटीमीटर आपको मिल रही थी सिर्फ हाफ वेव लेंथ। ठीक है, इसका मतलब है आपको हाफ वेव मिल रही थी। तो उसको फुल करने के लिए एक सिंपल सी कैलकुलेशन है कि आपको लेंथ को डबल करना पड़ेगा, और जब आप लेंथ को डबल करोगे, सो डेफिनेटली यू विल गेट अ कंप्लीट वेव। एंड व्हेन यू आर गेटिंग कंप्लीट वेव, सो यू हैव नाउ थ्री नोड्स एंड टू एंटी नोड्स। So we have two antinodes and three nodes this time.
but this time we have different scenario from the first one because we double the length, and when we double the length, so definitely you are going to get one complete wavelength, right? And in the same way, if you triple the length, right, like 10 multiplied by 3, so you will get 3 loops. Okay, so it means you need to know about the basic length. So the basic length is this one, 10 centimeter. So from basic length, and when you compare with the second one, so now you got idea that what will you get when you increase length 4 times, 5 times, 6 times. So this is your ओरिजिनल लेंथ। तो अगर आपको ओरिजिनल लेंथ और उसके बाद की लेंथ डबल करने के बाद आपको वेव्स का आइडिया हो जाए, तो अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं लेंथ को ट्रिपल कर दूं, तो आपका आंसर होगा यू विल गेट 1.5 टाइम्स और 1.5 वेव्स। एंड लेट्स सपोज इफ वी इंक्रीज लेंथ 4 टाइम्स, सो डेफिनेटली वी विल गेट 2 कंप्लीट वेव्स। तो इस तरह से आपके पास बेसिक वेव का अगर आपको पता हो, तो आप आगे की इजीली काउंटिंग कर सकते हो। ठीक है। So this is the scenario for changing length. This is L naught, original length, and this is 2 times of L naught. It means twice of original length. And in the same तो way, hmm, तो ये मगर करते कैसे हैं ट्वाइस? अच्छा बेसिकली क्या होता है कि वैसे तो ये प्रैक्टिकल इसका परफॉर्म किया जाता है और उससे हमको डेरिवेशंस मिलती है, लेकिन जब क्वेश्चंस होंगे तो आपको कुछ रेफरेंस देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दो वेव्स बनाई, तो आपको दोनों का आइडिया हो गया। अब मैं इसके बाद लेट सपोज आपसे पूछूं कि लेंथ हो अगर 70, ठीक है, तो अब आप 70 पे कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितनी वेव्स कंप्लीट होंगी 70 पे? आइडेंटिफाई करो। लेट सपोज इफ योर लेंथ इज नाउ 70 सेंटीमीटर, सो व्हाट विल बी योर वेवलेंथ? मतलब कितनी वेव्स अब आपके पास कंप्लीट हो जाएंगी, क्या वेवलेंथ का आंसर होगा? दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि अब मैंने आपको रेफरेंस दे दिया और अब आप काउंट करके बता सकते हो। और मगर एक वेवलेंथ का शायद कोई हम्म। एक वेवलेंथ की लेंथ शायद कोई ज्यादा कोई कम हो। नहीं नहीं, इसमें इक्वल ही है, अभी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि अगर कोई ऐसा डिफरेंस होता तो मैं पहले आपको मेंशन कर देता। ठीक है। अभी उस चीज की बात नहीं कर रहे, इक्वल लूप्स बनते हैं। क्योंकि हम जो यूज कर रहे हैं वाइब्रेशन, वो वेरिएबल नहीं है। तो जो एक लूप की लेंथ होगी वो दूसरे की होगी, तो इसमें वेरिएशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 70 सेंटीमीटर पे कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए, कुछ आइडेंटिफाई किया? तो राइट नाउ मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। कैलकुलेटर नहीं है, कोई मसला नहीं, हम इसको सिंपल काउंट कर सकते हैं। देखो आपके पास 20 पे कितनी वेव्स कंप्लीट हुई, 1। ठीक है। अगर ये 40 हो जाए, अगर लेंथ हो 40, तो कितनी वेव्स कंप्लीट हो जाएगी, 2। टू। ठीक है। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सपोज नाउ लेंथ इज 50, 2.5। नाउ एट 60, 3। नाउ एट 70 you will get 3.5 wavelength। ठीक है। ठीक है सर, समझ आ गया। हम्म। तो एक रेफरेंस आपको मिल जाएगा, फिर आप खुद ही काउंट कर लोगे, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है जिस तरह हम प्रीवियस ट्रांसवर्स वेव में पढ़ते आए हैं।
So this is the pattern with reference to the length, right? Because we discussed this pattern with the reference of length only. And there is another possibility. Another possibility is with the reference of changing frequency. अभी हमने चेंजिंग लेंथ के साथ तो डिस्कस कर लिया, बहुत इजी भी था. बट इफ वी टॉक अबाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, so if we talk about, so again, let's suppose initially we started with length 50 centimeter. So this time we have to use the same length because this time length is not changing. In previous scenario, length is changing. So we can identify a wavelength like this. But when your length is not changing, so definitely we have to use fixed length. We can change frequency, like we move a string faster or slower. So that will change the number of loops also, right? So first of all, again, we have to start from the basic one, single loop. अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो? अगर कोई है तो वो आप पूछ लो, वरना नो सर। ठीक है. क्योंकि अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो फिर ये कॉन्सेप्ट जो हम जितना आगे लेकर जाएंगे उतना ही आप कंफ्यूज होते जाओगे, क्योंकि प्रीवियस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. So this time we are talking about changing frequency. So changing frequency means again we have basic one loop, and we have two nodes and one anti nodes. Sorry, one anti node. So this is also called first harmonic, right? Because this is basic one. इससे basic नहीं कर सकते आप single से. So this is first harmonic. So whenever in exam you will get the concept of first harmonic or like one loop. So this is the idea of first harmonic. So in first harmonic, let's suppose we are using length 50, and definitely from the diagram we can identify we are getting half wavelength, 0.5 wavelength, and your length is equals to 0.5 wavelength. मतलब जो भी आपकी लेंथ है उसमें आप सिर्फ हाफ वेवलेंथ कंप्लीट कर पा रहे हो, राइट? इट मीन्स 50 is equals to 0.5 wavelength. So to get a complete wave, you have to divide zero point 0.5 on the other side. You will get answer 100 centimeter, right? So now this is basic frequency. So we will say this is for first harmonic. So this is F naught, and this is your basic half और द बेसिक वेवलेंथ. सो दिस इज लैम्डा नॉट. ठीक है, तो ये सारी चीजें नॉट के साथ हम मेंशन कर रहे हैं, लेंथ को भी नॉट लिख देते हैं क्योंकि ये सब बेसिक है. ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक की. नाउ वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी, एंड आफ्टर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी you will get different results. So now if we change the frequency, so you will get a different number of loops. So when you are getting different number of loops, so again we continue with increasing the number of loops, and now this time we are getting two antinodes. So when we are getting two antinodes, so in this example we are getting node, node,
node, and we are getting two antinodes this time. But important thing, length must be same 50 centimeter, because we are not changing length this time. We are using same length. And this is called second harmonic, because we are now getting two loops. So this is called second harmonic. So in second harmonic, we can say that this time we are getting complete wavelength. So this time we are getting one complete wavelength in the given length. So it means that 50 centimeter is equals to one wavelength. So basically, uh, इन दिस कॉन्सेप्ट आपको एक कंप्लीट वेवलेंथ तो मिल गई, ठीक है। और इफ यू टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी, सो बेसिकली यू आर यूजिंग सेम लेंथ, और उस सेम लेंथ में आपको दो लूप्स मिल गए। सो इट मीन्स योर फ्रीक्वेंसी इज नाउ डबल्ड। सो इट मीन्स योर फ्रीक्वेंसी इज टू टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट? बट योर वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड बाय हाफ। सर ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती क्या है? फंडामेंटल ये कि जो आपको फर्स्ट हार्मोनिक में मिल रही है ना। अभी वैसे हम नंबर्स यहाँ फ्रीक्वेंसी के लिख नहीं रहे, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकती है। अब जैसे आपने फर्स्ट हार्मोनिक कंसिडर किया, फर्स्ट हार्मोनिक में कुछ भी एक फ्रीक्वेंसी थी, उसको हमने एफ नॉट बोल दिया, ठीक है। वो 200 हो सकती है, 50 हो सकती है, 150 हो सकती है, सही है। मतलब आपने एक मोटर कनेक्ट की हुई है, लेट सपोज, और उसमें आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो उसकी वाइब्रेशन की, ठीक है। तो आपने पहले एक फ्रीक्वेंसी सेट की छोटी सी, ठीक है, और उसमें आपको एक लूप मिला, फर्स्ट हार्मोनिक। उस वक्त की फ्रीक्वेंसी को आपने एफ नॉट मान लिया, और उसको लैम्डा को, वेवलेंथ को आपने नॉट कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी। नाउ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड इन द सेम लेंथ, दिस टाइम यू आर गेटिंग टू लूप्स। सो व्हेन यू आर गेटिंग टू लूप्स, इट मींस नंबर ऑफ वेव्स इंक्रीजेस, राइट? तो नंबर ऑफ वेव्स डबल हो गए, पहले एक था अब दो हो गई। सो इट मींस योर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू टाइम्स, बट योर वेवलेंथ डिक्रीज टू हाफ। पहले एक थी 50 में, अब 50 में दो आ गई, मतलब उसी लेंथ में अब दो छोटी छोटी वेव्स आ गई। इसका मतलब नाउ योर वेवलेंथ इज डिक्रीज बाय हाफ, ठीक है। ठीक है, कोई क्वेश्चन अब? नो सर। तो इसी सेम लेंथ में आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, बिकॉज यू आर गेटिंग मोर नंबर ऑफ वेव्स, और वेवलेंथ हाफ हो गई, ठीक है। नाउ if we increase the frequency further, so how many loops we will get? We will get three loops, right? So in three loops, that is called third harmonic. So again we have two fixed points. So this is a loop. So basically now we have one, two, three, four nodes, and we are getting three antinodes.
दिस टाइम अगेन लेंथ रिमेन्स द सेम, लेंथ को चेंज नहीं करना, लेंथ इज अगेन 50 सेंटीमीटर। अच्छा अब देखो बहुत सिंपल हो गया, अब आपको पता है कि यहाँ पर 1.5 वेव मिल रही है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1.5 वेवलेंथ कंप्लीट हो रही है इन द गिवन लेंथ। ठीक है, इट मीन्स दैट 1.5 लैम्डा इज इक्वल्स टू 50, राइट, और लैम्डा इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 1.5। सो 50 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू 33.3, right? So 33 means if you compare with the first one, so you can see your first one is equals to 100 centimeter, right? और अगर आप 100 सेंटीमीटर से कंपेयर करो 33 को, ठीक है, अब आप 100 से 33 को कंपेयर करो, सो बेसिकली वेवलेंथ इज डिक्रीज 3 टाइम्स, राइट? 33 33 33 विल बी इक्वल्स टू 99। सो ओरिजिनल फर्स्ट हार्मोनिक के कंपैरिजन में जहां पर आपका वेवलेंथ इक्वल आ रहा था 100 सेंटीमीटर के, अब जो वेवलेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 33 सेंटीमीटर। सो बेसिकली इट मीन्स दैट योर वेवलेंथ इज decreased by 3 times and your frequency will increase by 3 times, right? So this is the idea of changing frequency and changing length। ठीक है, इस तरह से काउंटिंग की जाती है तो ये 50 से 33 का क्या कंसेप्ट है? बेसिकली। तो सॉरी मेरा इंटरनेट लैग हो गया था थोड़ा। अच्छा, थर्ड हार्मोनिक, ये बेसिकली हमारा थर्ड हार्मोनिक है। थर्ड हार्मोनिक में हुआ ये, लेंथ तो हम चेंज कर नहीं रहे, ठीक है, लेंथ आपके पास 50 है, और आपको अब डायग्राम देख के आइडिया हो जाएगा कि इसमें 1.5 बन रही है वेव्स। ठीक है, अब तो आप इतनी सारी डायग्राम देखिए तो अब आप देख के बता दोगे 1.5 है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब है 1.5 वेवलेंथ कंप्लीट हो रही है इन 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर हम सिर्फ वेवलेंथ फाइंड आउट करें तो 1.5 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये काम आप यहाँ भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 1/50 है, तो आप अगर लैम्डा फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो लैम्डा आपको मिलेगा हाफ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 100 था, अब आपको 50 मिल रहा है। और आप जब इसको कंपेयर करोगे इनिशियल हार्मोनिक यानी फर्स्ट हार्मोनिक से, यानी इससे, तो आप इन दोनों को कंपेयर करो तो 100 से 50 यानी हाफ हो गया, सिंपल सी बात है वेवलेंथ। ठीक है, और इसी तरह जब थर्ड में हमने देखा तो थर्ड में हमारा आंसर आया 33। तो 33 का मतलब ये हुआ कि जब आप उसे 100 से कंपेयर करोगे तो 100 डिवाइडेड बाय 33 का मतलब है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स डिक्रीज हो गया। 33.33 रिकरिंग आएगा आंसर। इसका मतलब है योर वेवलेंथ इज डिक्रीज बाय 3 टाइम्स and your frequency will increase by 3 times because wavelength decrease, frequency increase, both are inversely। ठीक है, कोई कंफ्यूजन?